So, bhai, welcome everyone to class on discussion of 2017. ठीक है, 2017 जो है आपका मॉर्निंग स्लॉट, राइट, और जो क्वांट सेक्शन आज हम करेंगे. सो इन दिस सेक्शन हमारे पास, हमें पता है 34 क्वेश्चंस थे. हम दो चीजें करेंगे. पहला, हर क्वेश्चन को हम क्लासिफाई करेंगे इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में, या मैं कहता हूं कि भाई यस, नो और लेट इट गो में. ठीक है, ये एक हो गया भाई. सेकंड इज यू शुड बी एबल टू क्लासिफाई कि ये किस सेक्शन से है आपका, है ना. अलजेब्रा का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है, राइट. ओके, एंड देन कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अप्रोच कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है. विल दैट बी फाइन विद यू गाइस? ओके, लेट अस गो अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. ठीक है, हमारे कौन पढ़ेंगे? somebody should read this and then we should solve this. हाँ, कौन पढ़ेगा भाई? Sir, I will go through. Yeah, you will read it. Yeah, please. Arun's present. Arun's present age in years is 40% of Barun's. So here we see this is A, this is B. So if B is 100, A is going to be 40, or it can be 10/4, Yes, or it sir. can be 5/2. So you should be able to reach 5/2, right? Because it is Yes, sir. age. Yes, sir. In another few years, Arun's age will be half of Barun's. Arun's age will be half of Arun. So 2:5 ratio will become 1:2. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. So what is the percentage increase in Barun's age? Barun का कितना percent age increase किया है? How much age or percentage of Barun's age increase during this period? This is the question. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अभी हमारा, आपको याद है बेटा ये किसका क्वेश्चन हो गया? रेशियो प्रोपोर्शन का हो गया. Yes, sir. Yes, Yes, sir. जो हमारी वीडियो है क्लास नंबर 2, राइट, जिसमें अंदर हमने चेंज ऑफ रेशियो की बात की है, राइट. Yes, sir. गैप सेम करने वाला, यहाँ पे गैप 1 है, यहाँ पे Yes. गैप 3 है, तो इसको 3 है. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 हो जाएगा. Yes, sir. हाउ मच इट इंक्रीज्ड? 1, 1. दिस इंक्रीज्ड बाय 5. 5. ठीक है, नहीं, दिस इंक्रीज्ड आल्सो बाय 1 यार. 1, sir. 1. So this increase is 50% and this increase is 20%. Which increase he is asking us? 20. 20. Arun's age. 20%. अब ये बताओ बेटा, ये इजी है, डिफिकल्ट है, या ये वो क्वेश्चन है जो आपको कभी आता नहीं था? Easy, sir. Yes, sir. है ना, क्लास में किया हुआ है ना ये, बिल्कुल. Yes, sir. Yes, sir. चेंज ऑफ रेशियो का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, चेंज ऑफ रेशियो का कॉन्सेप्ट. और ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन ही है, कैट 2017 का एक्चुअल क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Yes, sir. हाँ, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पढ़ो बेटा. A person can complete a job in 120 days. He works alone on day 1. Day 2, he is joined by another person who also can complete the job in exactly 120 days. On day 3, they are joined by another person of equal efficiency. Like this, every day, a new person with the same efficiency joins the work. How many days are required to complete the job? Yeah, again, this is a standard question of time and work. ठीक है? Yes, We sir. have done. So let us say one person does one work in one day, and there are total 120 works to be done. Yes, no? Yes, sir. Yes, First sir. day 1 work is done. Second day 2 work is done. Yes. Third day 3 works is done. So n day n works will be done. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Sum total of all this should be equal to or greater than or equal to 120. So let us randomly take n is equal to, out of any these option, can I take n is equal to 40? Let me take n is equal to 40 into 41 divided by 2. Yes, sir. It becomes very high.
Yes, sir. Yes, sir. Take 15. 15 into 16 divided by 2. What it becomes? 120. 120. Yes, sir. So the work will be completed in 15 days. 120. 15 days. 15 days. Did you understand this or not? Yes, Yes, sir. बस खत्म हो गया क्वेश्चन. Right. Next question, बेटा जी. Next Sir, n question. into n plus 1/2 लगाया आपने? Yep. Sum Yes, of sir. all the numbers, no? Yes, sir. Sum of Yes, all sir. the Yes, sir. अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है? हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी मेड डिफिकल्ट. दे मे स्टार्ट विद 10 पीपल इन अ डे, राइट? पहले दिन 10 लोग आए, दूसरे दिन 11 आए, फिर 12 आए. ठीक है, अब बताओ कितने दिन लगेंगे, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे? 120 वर्क्स ही हैं. लेट मी टेक जस्ट रैंडमली 20. ठीक है, हाउ मेनी डेज इट विल बी? 11 days. 11 days हो जाएंगे. So it will be 20 plus 10 divided by 2 into 11. So this gives me somewhere around how much it gives me? 3165. ज़्यादा हो गया. So 18 Yes, and 19 plus 17 also. So I have to remove 65 now from here. So this takes away 58. Yes, sir. 58, no. So it will take Yeah. 8 days. Because if I have to partially work on the 17th day. So it will take me 8 days. If I start with 10%, right? This can be reverse of this. Reverse कैसे हो सकता है? I start with 20%, right? And every day one person is leaving. बोलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 17, 16, right? Which day I will get? Yes, no? So Yes, this way you can just do it, you know. Okay, maybe you take 14 and 13. You take this many days and then work it out and then maybe try with another days. So see, no, naturally it has to be 20 days. It has to be 6 days, right? If all 20 work together. But Yes. as one person is leaving, so 1, 2, 3, 4, 5. So 5 person will be leaving in 6 days. Sorry, 5. This becomes your 15. 15 will be leaving in 5 days. 5 days. So total in 6 days you will be able to do 105 work, right? Yes, sir. On 7th day you do 14 work. So still one work is required to be done, which will be done on the 8th day. So again you will take 8 days. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So if you start with 21, you may be able to finish it in 7 days. So anyhow, this is how you could do this question, this type of question. But this particular question was fairly easy one, right? Right, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Next question. Padho beta. An elevator has a weight limit of 630 kg. It is carrying a group of people whom the heaviest weighs 57 kg. Weighs 53 kg. What is the maximum possible number of people in the group? So if we have lightest weight is 53, right? Yes, sir. Yes, sir. Heaviest is 57. So definitely there is a one person of 57. Yes. sir. Yes, sir. And one person of 53. 53. as we need maximum number of people, so what I will do? क्या करूँगा भाई मैं? तो मैं क्या 53 करूँगा? को इन दोनों को maximize. minus. 3 वाले maximum, but we have to keep one person of this, right? Yes, sir. Because the heaviest is that. So it becomes 110. 630 minus 110. 520. 520. This Yes, sir. gives me 2 people. So with 520, I can have 553. I can have at least 9. So, right? 11. Okay. Yes, sir. So my number of people will be 11. 11. सर 2 people ये कैसे आया? ये स्टार्टिंग वाले ये तो 2 पक्का हो गए ना? Yes, sir. ये 2 लोग तो हो ही गए ना भाई? Yes, The sir. lightest and the heaviest.
सर हम 57 को मिनिमाइज करके लेके 57 को 1 देके और 53 को वो 10 भी देके। की बात है, तो भी आंसर तो 11 ही आएगा। यस सर। यार जैसे वेट जो बच जाएगा उसका कोई इशू नहीं है, जैसे 53 को 9 से करेंगे। 8 कोई ना कोई ज्यादा होगा ना, दे विल नॉट बी ऑल एग्जैक्ट 53। ओके सर। So somebody would be 54, somebody would be 55, somebody would be 59, 56, right? But that way. So again, it is a question from किस चीज का क्वेश्चन है? I would say averages का क्वेश्चन लगा लो, ये है ना, Yes, sir. बेसिक मिनिमा मैक्सिमा है इक्वेशन के अंदर, ठीक है? So it can be, this is 53x plus 57y is equal to 630, right? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी। A man leaves his home and walks at a speed of 12 km per hour. Reached the railway station 10 minutes after the train had departed. If instead he had walked at a speed of 115 km per hour, he would have reached the station 10 minutes before the train's departure. The distance from his home to the railway station is. ये भाई कितने बार करवाया है आपको, है ना? आप Yes, sir. देखेंगे यूट्यूब पे भी ये करवाया हुआ है, जल्दी जाना देर से आना, है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट। Yes, sir. Yes, sir. 12, so d by 12 minus d by 15 total is equal to how much? 10 minutes, 10 minutes, 20 minutes. 20 by Divide by 60. 60 भी लगेगा। Why? Because it is in minutes, it is in Yes. kmph. So from here you can get what can be the answer, right? What is the answer? The 20. 20 आ रहा है sir. It's 20. So you say 15d minus 12d upon 180 is equal to 1 by 3. So d is equal to 20. 20 kilometer is the distance, right? Right, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अभी तक कोई भी मेरे को ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो हमने क्लास में ना किया हो, जो आपको ना आता हो और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ना हो। हाँ जी, पढ़ो भाई। Ravi invests 50% of his monthly savings in FDs. 30% of the rest of his savings is invested in stocks. The rest goes into Ravi's saving bank account. If the total amount deposited by him in the bank for savings and FD is rupees 59500, then Ravi's total monthly salary is. रवि क्या करता है भाई? मंथली सेविंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट? परसेंटेज ऑफ सेविंग इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स एंड द रेस्ट इनटू रवि's बैंक अकाउंट, ठीक है? सो 50% in fixed deposit, 30% in No, sir. So 30% No, sir, of the 50 rest का of the 30 का। savings. 30% of the rest, so it will be 15%. 15. 15 आ जाएगा। And the rest 35% 35. in the bank account, right? Yes, The sir. total amount deposited by him in the bank, right, for savings account and fixed deposit. Fixed deposit आ गया जी sir. and savings 35. Yes, sir. Sir, Yes, sir. 85% is equal to 59500. Total बताना है, to divide by 85, it will cut it on 70. 70,000. अब बताओ भाई, ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. कैट में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, ये तो सर मैं तो बहुत अपने easy मैं बनाया नहीं है, मैं तो तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ तुम्हें। दिस इज रियल एक्चुअल 2017 कैट, और ये अभी तक पांचों के पांचों क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, राइट? Yes. जिसने परसेंटेज और मैंने आपको बोल बोल के करवाए हुए हैं कि भैया ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हाँ, अननेसेसरली मैं आपको गंदे गंदे क्वेश्चन करा दूं, उसका क्या फायदा है? दिस इज यूजलेस। हाँ, दैट विल बी राइट। ठीक है, जब आपका बेसिक हो जाए, आएंगे 2-4 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लगेगा कि भाई डिफिकल्ट हैं, हाँ, बट दीज आर ऑल डूएबल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर इसको एवरेज में लिखना है? हाँ जी, परसेंटेज में। परसेंटेज, दिस इज ए क्वेश्चन ऑन परसेंटेज। ओके। परसेंटेज और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा है इसके अंदर। चलो बेटा पढ़ो। If a seller gives a discount of 15% on retail price, if you want to read, you can, whosoever is reading. कौन पढ़ रहा है? तुम पढ़ सकते हो, मैंने टोक दिया। तो चेंज हो गया क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आई थिंक। बोलो, पढ़ो भाई। If a seller gives a discount of 15% on retail price, she still makes a profit of 2%. Which of the following ensures that she makes a profit of 20%? तो 15% का डिस्काउंट देके 2% प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो 100 रुपीज वाली आइटम 102 की हो गई। जी सर। यस Yes, सर। sir. रिवर्स लगाया तो 120 की हो गई, डिवाइड बाय 85 इंटू 100। यस सर। यस सर। तो उसको 20% प्रॉफिट बनाना है, तो भाई सेल एट रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस। Yes, sir. यस सर। ये Yes, क्वेश्चन sir. भी क्लास में करवाया हुआ है यस सर। और अभी भी किए हैं, जो हमने परसेंटेज वाली वर्कशॉप की थी, किया था ना उसमें। Yes, sir. ठीक है ना, समझ आया? ये क्या है, 100 रुपए वाला आइटम 102 में बेच रहा है और 85 पे उसको डिवाइड कर लिया, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया, मार्केट प्राइस आ गया, रिटेल प्राइस जो भी है। इस पे अब कितना डिस्काउंट दे ताकि वो 120% प्रॉफिट हो, तो भाई 20% तो सीधा आ ही गया, ठीक है। अब जैसे ये हो जाता कि अगर वो 108 रुपीज का सेल करता, कितने का? कि भाई 8% डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो, तो कितने पे उसको डिस्काउंट देना चाहिए? या ये भी हो सकता है, हाउ मच डिस्काउंट ही शुड गिव टू गेन 8%। तो 8% गेन करने के लिए 108 का बेचना होगा, तो 10% डिस्काउंट दे सकता है। या उल्टा भी बोल सकता है कि नाउ शी गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 5%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट? 5% डिस्काउंट होने के बाद कितने का हो गया? 120 का 6, 114, 14% प्रॉफिट, राइट? Yes, So sir. this is a typical question of profit and loss and discount. Profit, loss and discount का question है। Next question. A man travels by motorboat down a river to his office and back with the speed of the river unchanged. If he doubles the speed of the motorboat, then his total travel time gets reduced by 75%. The ratio of the original speed of the motorboat to the speed of river is. तो भाई मान लो उसका मोटरबोट का स्पीड क्या है? m है, ठीक है। सो ही डबल द स्पीड ऑफ मोटरबोट, उसका टाइम कितना हो जाता है? 75% रिड्यूस हो जाता है। 75% रिड्यूस हो जाता है। तो मतलब पुरानी एवरेज स्पीड और नई एवरेज स्पीड की रेशियो 4:3 हो गई। यस सर। सो पुरानी उसकी स्पीड कितनी हो गई? मोटरबोट माइनस वाटर, मोटरबोट प्लस वाटर। हेलो? Yes, sir. यस सर। यही होता है ना, मोटरबोट माइनस वाटर, मोटरबोट प्लस वाटर। दिस इज अपस्ट्रीम, दिस इज डाउनस्ट्रीम। तो जाते हुए अपस्ट्रीम, वापस आते हुए डाउनस्ट्रीम। तो एवरेज टाइम क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड क्या हो जाती है जब डिस्टेंस सेम हो? 2ab upon a plus b. यस सर। m minus w multiplied by m plus w divide by into 2 divide by a plus b, 2m। बोलो। Yes, sir. यस सर। रेशो अब दोबारा कितनी होगी उसकी? 2m minus w, 2m plus w into twice divide by 4m. It should be equal to, ये एवरेज स्पीड है, तो टाइम उसका 75 रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो टाइम उसका पहले 4 लगता था, अब 3 लगेगा, मतलब पहले 3 स्पीड थी, अब 4 स्पीड हो गई।
Yes, sir. तो इज इक्वल टू 3/4। ये वाली सारी चीज को हम सॉल्व कर लेंगे। Yes, sir. तो 2 से 2 कट गया और ये m से m कट गया एंड ये इससे 4 से ये 2 कट गया। ठीक है, सो ऊपर हो गया m स्क्वायर माइनस w स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4m स्क्वायर माइनस w स्क्वायर। ठीक है, Yes. Yes, sir. 8 नहीं, यहाँ 3 आएगा। सॉरी, ठीक हो गया भाई। Yes, sir. तो लिखो 4m स्क्वायर माइनस 4w स्क्वायर इंटू 2 भी है तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12m स्क्वायर माइनस 3w स्क्वायर। यस, Yes, sir. तो इसको हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, ये बन रहा है ना 4m स्क्वायर, Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू So plus 5w square. +5 नहीं आ रहा, -5 -5 आ रहा है, sir. माइनस आ रहा है सर। तो हमने कोई गड़बड़ कर दी है क्या? सर इधर सिर्फ हम 1/4 नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड 75% कम हो गई। रिड्यूस्ड बाय, हाँ, तो रिड्यूस्ड बाय 75 का मतलब हुआ कि भाई स्पीड हो गई आपकी टाइम, पहले 4 मिनट लगते थे अब 1 मिनट लग रहा है, पहले अब 1 मिनट लग रहा था अब 4 मिनट लग रहे हैं। मतलब पहले 1 स्पीड थी अब 4 स्पीड हो गई है, तो 1 होगा यहाँ पे, इट शुडंट बी 3। ठीक है भाई? यस सर। सो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 7w स्क्वायर। ठीक है? यस सर। मोटर बोट टू द वाटर, सो m अपॉन w इज इक्वल टू 7/4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 7√7/2। है कोई ऑप्शन? Yes. Please. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो था एप्लीकेशन आगे चला गया। तो ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में नहीं भी कर पाए तो आई विल से ओके, नो वरीज, राइट? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. यस ये क्वेश्चन लेट इट गो वाला था, या तो इसको छोड़ दो या आप क्या करो कि भाई क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए बाद में देखेंगे। देखो कॉन्सेप्ट कोई जबरदस्त नहीं है, सिर्फ यही लगाया हमने दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b, पर फिर भी बैठाना करना यूजली एग्जाम में नहीं आता, ऐसी गलती कई बार हो जाती है। ठीक है, पर ऐसी गलती होने का क्वांट में बेनिफिट क्या होता है कि आपका आंसर नहीं मैच कर रहा, तो आपको पता चल जाता है यार कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना? जैसे हमारा यहाँ पे आया था, हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा था, तो हमें पता लग गया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose C1, C2, C3, C4 and C5 are 5 companies. The profits made by C1, C2 and C3 are in the ratio of 9:10:8, while the profits made by C2, C4 and C5 is in the ratio of 18, 19 and 20. So ठीक है, if तो ये कॉमन है, yes, sir. Yes, sir. इसको आप गुना करो 9 से, इसको गुना करो 5 से, 5, क्या हो गया? 81, 81, 90, 72, 72, 95, 100. 100, ये टोटल करके कितना, ये रेशियो आ गई ना इनकी? 4, Yes, 3, sir, यही 8 डायरेक्ट आंसर। ये कह रहा है आ जाएगा। 5 हैज मोर देन, ये इससे इतना ज्यादा है भाई, दिख ही रहा है इतना ज्यादा है, 90 नहीं ज्यादा है। Yes, sir. देन द टोटल प्रॉफिट सम ऑफ ऑल Yes, sir. 438 आ गया. 438 आ जाएगा सर। 8 आंसर आ गया। किसका क्वेश्चन है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाया था ना वो। Yes, sir. रेशियो ऐसे ऐसे करके Yes, sir. ये Equate ले करने लो, वाला. फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, हाँ? Yes, sir. कंबाइनिंग ऑफ रेशियो
Yes, sir. बस हो गया क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है? एक चीज जैसे अगर 5 वेरिएबल को बराबर करना हो तो कैसे करते हैं? कोई बात नहीं, 5 को ऐसे मत करो, पहले 4 को इक्वल कर लो, फिर नेक्स्ट वाले को इक्वल कर लो। ठीक है। या अगर करना है तो पांचों लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 बन जाएंगे ना ये। मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे आपको। ए बी बी सी सी डी डी, ये बन जाएंगे ना। जी सर। तो पहले इनको गुना कर लो। ठीक है सर। फिर ए को छोड़ दो, इनको गुना कर लो। ठीक है सर। फिर बी को छोड़ दो, इनको गुना कर लो। फिर सी को छोड़ दो, इनको गुना कर लो। फिर डी को छोड़ दो, इनको गुना। ठीक है। ठीक है, यस सर। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ो भाई। The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. So if 30% of the girls and 45% of boys, question से change हो गया. So if 30% of girls and 45% of boys get admission, the percentage of candidates who do not get admission is? Easy, weighted average क्वेश्चन है। 200 गर्ल्स मान लो, 100 बॉयज मान लो, ठीक है। Yes sir. Yes sir. 30% गर्ल्स गॉट एडमिशन, तो 60 को यहाँ पे एडमिशन मिल गया, 45 को यहाँ पे एडमिशन मिल गया। Yes sir. 105 को एडमिशन मिल गया, 35% एडमिट हो गए। जिनको एडमिशन नहीं मिला 65% डू नॉट गेट एडमिशन। ठीक है। Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। A stall sells popcorn and chips in packets of 3 sizes, large, super, jumbo. The number of large, super and jumbo packets in its stock are in the ratio 7, 17 and 16 for popcorn, 6 ratio 15 ratio 14 for chips. If the total number of popcorn packets in the stock is the same as the chips packets, then the number of jumbo popcorn packet to the ratio of jumbo chips packets are 7, 17, 16 रेशियो 6, 15, 14। ठीक है। पॉपकॉर्न के टोटल कितने हो गए? 40. इसके टोटल कितने हो गए? 35. तो दे बोथ आर सेम। Yes. तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 7, दिस मल्टीप्लाइड बाय 8, 280. Yes sir. Yes. तो ये इनटू, अब किसका पूछा है? जंबो ऑफ पॉपकॉर्न और चिप्स का। ये पॉपकॉर्न है, 16 14 का पूछा है। इसका जंबो पूछा है ना? जी सर। Yes sir. Yes, sir. 16 14 7 जंबो हो गया। रेशियो जंबो चिप्स 14 into 8 हो गया। 1:1 आंसर आ गया। आगे सर। Yes, sir. मेन क्वेश्चन ऑफ Ratio proportion. Ratio proportion. रेशियो प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो In a पहले market, 10 क्वेश्चन में हमने देखा सिर्फ एक क्वेश्चन था जो मेरे को परेशान कर रहा था। ऐसा क्वेश्चन था जो नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। ठीक है। बाकी 10 के 10 क्वेश्चन मेरे 9 के 9 क्वेश्चन डुएबल थे। बेसिक परसेंटेज, बेसिक आपका टाइम एंड वर्क रेशियो, बेसिक टाइम एंड वर्क, बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे। यस नो? Yes sir. हाँ, और 11वां क्वेश्चन। in a market the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes. A shopkeeper buys 80 kg good mangoes and 40 kg medium quality mangoes from the market and then sells all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones. मान His लो ये overall 1 रुपए का लिया है, ये 50 पैसे का लिया है, टोटल उसके 100 रुपए लगे। जी सर। Yes sir. 120 मैंगो हो गए उसके। ठीक है। अब 90 पैसे पे बेच रहा है, 108 रुपए कमाएगा। 108। Yes sir. 8th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है ये। Did you understand this? Yes sir. Yes Yes, sir. sir. केजी 40 केजी, ये 10 रुपीज का मान लो, ये 5 रुपीज का मान लो, ऐसे कर लो। सो 1000 रुपीज लगे। Yes, sir. He is selling all 120 at 9 rupees. So 1080. How much is the gain? 8%.
नेक्स्ट क्वेश्चन. If Fatima sells 60 identical toys at a 40% discount on the printed price, then she makes 20% profit. 40% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. 10 of these toys are destroyed in fire. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. 20% जल गए ना उसके. 20% प्रॉफिट है सर. 10 जल गए. 10 जल गए. 10 जल गए सर. 10 टॉयज जल गए उसके. ठीक है. सो मान लो उसके पास 60 टॉयज हैं. ठीक है. 40% डिस्काउंट दे रही है वो. ठीक है. और फिर भी 20% प्रॉफिट हो रहा है. मान लो उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है. किसका? टॉय का. टॉय का. सो कितने रुपए लगे भाई उसके? 6,000 रुपीज कॉस्ट किया उसका. Yes, sir. Yes sir. 6,000 कॉस्ट में शी इज मेकिंग 20% प्रॉफिट. सो शी मस्ट बी सेलिंग एट 7,200. नहीं, हाँ, या 720. दिस प्राइस कम्स व्हेन 40% डिस्काउंट देने के बाद. 40% discount. डिवाइड बाय 60 into 100. Right? Isn't it come 1,12,000? Yes, sir. So one toy comes off 200 rupees. बोलो. Yes sir. Yes sir. आप या ये वाला रिलेशन भी पकड़ सकते हैं. ये वाला रिलेशन कि 40% डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. 120 ले लिया. 100 वाली 120 पे बेच रहे हैं. 100, 120, 200. तो 200 वाली आइटम 100 पे बेच रहा है ना वो. सर नहीं, 120 पे बेचेगा सर. 20 सर 120 पे बेचेगा. जी सर. अब क्या हुआ कि उसके टॉयज जल गए. कितने जल गए? 10 जल गए. 10 जल गए. 50 रह गए. तो 50 टॉयज रह गए अगर उसके पास, तो 50 टॉयज से उसने वापिस 7,200 रुपीज ही बनाने हैं. तो सर 120 हो जाएगी. सो डिवाइड बाय 50. यस, 144. 144 का बेचना है. तो हाउ मच डिस्काउंट शी कैन ऑफर? 56 from 2000. 28%. Yes. Yes sir. ठीक है भाई. 28% डिस्काउंट आ गया. थोड़ा सा आई वुड पुट इट इन द मीडियम कैटेगरी, क्योंकि इसमें डबल सेट है. बिल्कुल प्लेन नहीं है, हलवा नहीं है. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. हाँ जी. If a and b are integers of opposite signs such that a plus 3 into 2 ratio B square. It is b square, sorry. Square है, sorry sir. A plus 3 का square ratio b square is equal to 9:1. And a minus 1 square ratio b minus 1 square is equal to 4:1. ये opposite signs के हैं. तो हमें a square ratio b square निकालना है. Now, अब एक तो हिट एंड ट्रायल से हो सकता है. ठीक है. बट दे आर ऑफ ऑपोजिट साइंस. ये सारा पंगा क्रिएट कर देगा. ठीक है. दे आर ऑफ ऑपोजिट साइंस. तो और a को 1 भी ले सकते हो, बट देयर कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी मल्टीपल ऑफ दैट आल्सो. राइट. तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को. पहला मेथड तो है कि भाई इसको बेसिक सॉल्व कर लो आप. ठीक है. क्या बन गया? ये बन गया सर a plus 3. a square plus 3 नहीं plus 9 plus 6a is equal to 9b square. चल इसको उधर ले जाओ, स्क्वायर को. नहीं बेटा, ऑपोजिट साइन है तो पता नहीं ना आपको ये प्लस आएगा माइनस आएगा. तो सर केस बना लेंगे. केस बनाना पड़ेंगे ना, वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे. इट विल बी a square minus a minus 2a plus 1 is equal to b square 4b square plus 4 minus 8b. यहां तक कुछ लग रहा है आपको? निकल रहा है कुछ? नो सर, यहाँ से नहीं तो निकल रहा है. इसको छोड़ लो और भाग लो. ठीक हो गया? हाँ जी सर. यस सर. हमने 1 मिनट लगाया नहीं है.
और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है, ठीक है, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर पूछा गया है। दूसरा मेथड क्या है कि मैं इसके रिवर्स चल पड़ता हूं, मैं कहता हूं ये आ जाएगा 3 और 2 आ जाएगा ए और बी, ठीक है। यस सर। क्योंकि ऑपोजिट साइन के तो मेरी दो ऑप्शन बनेगी, -3 और 2, 3 और -2, ठीक है। कौन सी चीज मेरी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं a-3 पुट करूंगा ये तो 0 आ जाएगा, ये तो सेटिस्फाई करेगी नहीं। ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाएगा आपका। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि सर ये फर्दर कट किए हुए हैं तो पॉसिबल नहीं बोल रहा हूं दिस इज ए क्वेश्चन व्हिच इज टू बी लेफ्ट आउट, इसको छोड़ देने में ही भलाई है, ठीक है। प्लस में क्या किया था या नहीं था किसी का? मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन गलत टाइप्ड हो सकता है कुछ और हो, आपको नहीं बैठ रहा ना, आपने नहीं किया हुआ ऐसा, ठीक है, तो एग्जाम में छोड़ो, आगे चलो। नेक्स्ट सर इसको हाई लेवल में डालना है मीडियम? हाँ, डिफिकल्ट लेवल। नेक्स्ट, A class consists of 20 boys and 30 girls. In the mid-semester examination, the average score of the girls was 5 higher than that of the boys. In the final exam, however, the average score of girls dropped by 3, while the average score of entire class is increased by 2. The increase in the average score of boys मिड टर्म में, और ये है आपका फाइनल एग्जाम में। मिड टर्म में क्या था, गर्ल्स का एवरेज ज्यादा था, this was x plus 5. In the final exam, however, the average score of the girls dropped by 3, right? And overall increased by 2. Increased by 2. Now, अब देखो, ये x plus 3 है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, what will be average x plus 2? नहीं, x plus 3 होगी एवरेज, x plus 3 होगी एवरेज, समझ आया? x plus 3 एवरेज कहां से आएगी? मिक्सचर एंड एलिगेशन लग गया? यस सर। कहां से आया बताओ? सर 2:3 में हुआ है ना? हाँ, this gap should be divided in 2:3, right? Yes sir. x plus 3 एवरेज आ गई नहीं भाई? अरे ऐसे कर लो यार, 20x plus 30x plus 150 डिवाइड बाई 50। अब ठीक है, अब ठीक है, आ गई थी सर। हाँ जी। तो ओवरऑल एवरेज, the entire average of the entire class increased by 2, this becomes x plus 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये निकल जाएगा आपका सर ऊपर अगर आप x plus 2 ही ले लो सीधा, अच्छा ये ठीक है सर, ये वाला निकल जाएगा, ये कितना आएगा, ठीक है, बोलो भाई x plus 8, तो ये आ जाएगा 20x minus 60 plus 30y is equal to, ये y मान लो एवरेज, it should be equal to 50x plus 250, isn't it? गर्ल्स की ड्रॉप, अच्छा गर्ल्स की ड्रॉप हुई है, सॉरी हम गलत ले गए, ये इट विल बी x minus 3, ये आएगा x plus 2 रह जाएगा ये, सॉरी ऊपर आपका आ गया x plus y ले लो, ठीक है। तो ये हमें देखना है कितना आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन को हवा में करके दिखाएं? यस सर। कुछ कोई वैल्यू नहीं लेनी है, हवा में करके दिखाएं आपको? यस सर। ये बताओ टोटल लोग कितना है भैया? 50। टोटल लोगों को कितने का फायदा हुआ? 5। 2 का 100 रुपए का फायदा हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, तो लड़की लोग का क्या हुआ? 3 का कम हो गया। किसका कम हो गया? 3 का लॉस हो गया। 3 कम हो गया, कितनों का? 30 का। 30 का 90 गया और
यस सर। यस सर। ये फायदा भी किसको हुआ? बॉयज को। बॉयज को हुआ, बोलो। तो सर ये कवर करेंगे बॉयज 90 अरे यार ओवरऑल 100 का गेन है, गर्ल्स को 90 का लॉस है, तो बॉयज को 190 का गेन नहीं हो गया? 190 यस सर, बॉयज ने वो Yes, कवर कर sir. लिया। 190 डिवाइड बाय 20 9.5 आंसर आ गया। ये तो बहुत गुड हो गई तो। ऐसे है, फिर सर का कुछ तो फायदा होना चाहिए। यस यस सर। सर, एलिगेशन से वैसे जल्दी हो गया था, 1 मिनट के अंदर ही हो गया था। ये इससे भी जल्दी हो गया। ये नया कंसेप्ट पता लगा। हाँ ठीक है ना। जो टोटल गेन हुआ या तो भाई लड़कों से आएगा लड़कियों से आएगा, लड़कियां तो पहले ही लुट गई, राइट। 2 इसका लॉस हो गया इधर, तो बॉयज को गेन होएगा, आंसर आ गया। यस सर। यस सर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में। एरिया अंडर द कर्व, टू ए स्क्वायर होता है ना। हेलो हेलो हेलो, यस सर। बोलो यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली क्लास में किया है या नहीं किया हमने ये? सर सीखा हुआ है सर। यस सर। कितने तो बताया बार 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 आपको कि 4 इक्वेशन बनेगी, इसमें कुछ नहीं करना आपको। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर x और y के कोफिशिएंट अलग अलग हों, यहाँ a आ जाए यहाँ b आ जाए इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो 2ab आंसर आ जाता है एरिया का। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। ये हो जाए मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 12, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, तो व्हाट विल बी एरिया? तो आप करोगे ना x बाय 4 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1, राइट। तो एरिया विल बी 24। बोलो भाई, यस नो? Yes. यस सर। पढ़ो। सर 1 मिनट। हाँ जी सर। फ्रॉम ए ट्रायंगल एबीसी। पढ़ दो तुम, पढ़ दो, मैंने बहुत बार काट दिया इनको। Shall I read or you will read? You read, don't worry. Okay. From a triangle ABC with sides of length 40 feet, 25 feet and 35 feet. A triangle portion GBC is cut off where G is the centroid of ABC. The area in square feet of the remaining portion of the triangle ABC is. ठीक है। सो क्या बताया था हमें, मैंने आपको 2:1 में डिवाइड। अबे नहीं, सिंपल एक और चीज बताई थी, द सेंट्रोइड द मीडियन triangle into 6 equal parts. Yes. It be 1/3 of the whole triangle. यस सर। यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से कैसे लगे? ये पाइथागोरस लग रहा है, 5 कॉमन ले लो, इसमें से क्या बच गया? 8 5 7। पाइथागोरस तो नहीं लग रही? यस सर। लग रही है सर। कहाँ लग रही है? 8 5 7 कौन सी पाइथागोरस होती है बे? नहीं लग रही। नहीं सर। ठीक है, 8 5 7। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? हीरोन फार्मूला लगेगा। Yes, sir. टोटल करो इसका 80, व्हाट इज टोटल? 100 Yes, sir. divided by 250. So 50 into 10 into 25 into 15 का under root. What is this? 250√3. Area divided by 3. So what it will be? Sir, 500√3, I think. नहीं, you will get 5 from here, you will get 10 from here, 50, and into 5 more, then √3 divide by 3. Sorry. So 250
रूट 3 बाय 3, तो 250 बाय रूट 3। आंसर यस। हीरोन फार्मूला तो लगाना आता है भाई? Yes, sir. Yes, sir. In mensuration class 1 I told you Heron formula. In geometry class of centers we talked about this concept, right? Yes, sir. अब लोग Yes, लगे हैं 2:1 में इसका फटा करने, फिर ये पता करने, फिर पता नहीं क्या क्या पता करने। लिखवाया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। The median divide the triangle into 2 equal parts. ब्रैकेट में लिखो एरिया वाइज। हाँ जी सर। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखा है। 500 by root 3 आ रहा है। हाँ? आंसर 500 by root 3 दिया हुआ है। Yes, sir. हाँ, फिर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन बोला है ना। ओके ओके। तो ये तो इस पोर्शन का एरिया आया 1/3। हमें तो ये 2/3 पता करना है इसका। ओके सर। ठीक है, बोलो। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं किया मैंने। यस सर यस। ठीक है, चलो बताते हैं इस क्वेश्चन को और फास्ट कैसे कर सकते हो। रियल क्वेश्चन है, मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चन ही फास्ट कर रहा हूं। Yes, sir. You know you have to find the area of this, which will be 2/3 of area of triangle. Yes sir. Yes. यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? Yes. Okay. Now this is a triangle 40, 25, 35. Is it a right angle triangle? It is not a right angle triangle. But if I just write it as 5, 7, 8, 5 square plus 7 square is how much? 74. 74. This is coming out to be 8. So this is 5, 7, 8.5 होता तो right angle triangle बन जाती। Ours is how much? Ours, this is 8. Yes, no? Yes. So my area is very close to that. So this is 35. ठीक है, समझा है ना? This becomes base, this becomes height. So it is 25 into 35 divided by 2 approximately. 2 goes out. So 25 into 35 how much? 875. 875 upon 3. How much is that? Approximately 291. 300? 92. Yes. 300 is area. See which one gives 300. Does this give 300? यहाँ पे तो सर अप्रोक्सीमेशन रिस्की है थोड़ा। हैं जी? यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेशन रिस्की है। नहीं, बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। नहीं, अप्रोक्सीमेशन तो इतने तो दूर ऑप्शन, इतने दूर दूर तो ऑप्शन है। अब जो एरिया बनाया है हमारा वो कितना आएगा? ट्रायंगल का एरिया जो मेरा बन रहा है इसका, इसको इक्विलेटरल ले लो, उससे तो कम ही आएगा। हाँ जी। अगर ये टोटल मेरा 800 हो गया ना, so perimeter one side becomes 100 by 3, isn't it? Yes. Yes, sir. तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई my area can be √3 by 4, √3 by 4 of a square, no? इससे तो कम ही आएगा। इसका 2 by 3 ऐसे कर लो। √3, this is 2, this becomes 100 by 3, 33, 33 का square 1089. Yes, so 540 √3 से थोड़ा सा कम आएगा। अब ठीक है? ठीक है सर। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती तो उसका तो मैक्सिमम एरिया होता ना,
जी सर। सेम पेरीमीटर, थोड़ा सा ही कम आएगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्विड नहीं है। यस। बस थोड़ा सा कम, 540√3 से थोड़ा सा कम, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर। सर इसको मॉडरेट में लिखें? इसको मॉडरेट में लिख लीजिए। वैसे तो मैं इजी में ही कहूंगा, क्योंकि हीरोन फार्मूला ही लगा है, फिर भी मॉडरेट में लिख लीजिए। सेंट्रोइड का फंडा पता होना चाहिए था। Let ABC be a right angle isosceles triangle with hypotenuse BC. Let BQC be a semicircle away from A with diameter BC. Let BPC be an arc of a circle and centered at A and lying between BC and BQC. If AB has length 6 centimeters, then the area in square centimeters of the region enclosed by BPC and BQC is. Okay, so this is a question where you need to draw. You need to draw. How will you do that? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे पहले। हाँ, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस है, राइट? सो इट इज आइसोस्केलेस। Let BQC be a semicircle. This is BCA. Away from A with diameter BC. So away from A, देखो ये या तो इधर सेमीसर्कल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल पे, या इधर बनेगा। अवे है तो ये वाला लेंगे, ठीक है? यस। Let BPC be an arc of a circle centered at A. So BPC of a arc circle centered at A. ठीक है, ये P आ गया, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। Lying between BC and BQC. BC and BQC. AB has length of 6. This is 6, this is 6, this is 6√2. Area BPC. BPC and ये वाले एरिया का, इसका क्या पता करना है? एरिया। एरिया पता करना है, ठीक है? Now you know this area and this area, तीन एरिया हैं। इसको मैं x, y और z बोल देता हूं, ठीक है? y plus z is area of semicircle. Yes sir. Yes. 6√2. So this becomes pi by 2 into 6 into √2 का whole square. Is it 36 pi? Yes sir. Area of BPC, x is equal, this is actually y plus z. Y right? plus z. Yes What sir. is x plus z? X plus z, x plus y, sorry, x plus y. What is x plus y? 1 by 4, 36 pi. Isn't it? Area of this is x plus y. Yes sir. Okay, what is area of x? 18. Right? So you Sir, 1 by 4 36. हाँ? Sir, 1 by 4 36 pi कैसे हो गया? यार पाई आर स्क्वायर नहीं होता, क्वाड्रेंट का हो गया एरिया। So my y comes out to be 9 pi minus 18, and you subtract from here 9 pi minus 18. Sir, for semicircle 6 root is diameter. Okay, 6 diameter, so it will be 3√2. 3√2. So 3√2 becomes 9 pi, right? Yes. कट हो गया?
हो गया सर। ये +18 आ गया, आंसर आ गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये प्रैक्टिस से आएगा, अदरवाइज तो आप ऐसे लंबे मेथड से करेंगे। अदरवाइज दिस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके सर, नोट कर लिया। समझ आया ना? यहां से समझ आ गया ये सारा कुछ लगाने के बाद। अदरवाइज अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया होगा क्लास में कि एक ऐसे डालो, ऐसे बनाओ, और नहीं एक दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूँ। ये नोट कर लो, वो ऐसे बनाया था, एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, और एक ऐसे ले लो। ये वाला एरिया, मतलब ये एक सेमी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा किया, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा किया, और एक सेमी सर्कल इस पे ड्रॉ किया। ये एरिया बच गया ना? बोलो। यस सर। इस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसे हमने अभी ड्रॉ किया कि एक हमने ये ले ली, ये अभी जो ड्रॉ किया आपने, ये ले लिया आपने, एक इसके राउंड सर्कल बना लिया, एक इसके राउंड सर्कल बना लिया। तो दिस एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर। आज हम यहीं रुकते हैं।